Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Chapter 18 Association of Attributes. Today lecture number 1 and the topic is of important short questions of chapter 18 Association of Attributes. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic important short questions of chapter 18 Association of Attributes. The contents of this lectures is based on important short questions for the chapter 18 Association of Attributes. Now students, I will discuss one by one first 5 important short questions. Question number 1, 2, 3, 4 and 5. Now students, I am going to start important short questions one by one. In this question, we have the following information about attributes. Capital N equal to 1024, A bracket, that is the first attribute 1.44, and B bracket 384, second attribute, and a combined AB bracket equal to 54. Show that the both attributes A and B are independent. If attributes are independent, then we can say that AB bracket equal to A bracket into B bracket over N. डिनोमिनेटर में इसको n यूज करेंगे और स्टूडेंट्स हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है वो इक्वल प्रूफ करेंगे. तो यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी हैव 54 ए बी ब्रैकेट इक्वल टू 54 पुट कर दें, ए ब्रैकेट इक्वल टू 144 एंड बी ब्रैकेट इक्वल टू 384 और डिनोमिनेटर में आपने पुट करना है कैपिटल एन इक्वल टू 1024. ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 55,296. इसको डिवाइड करें 1024 पे, आंसर इज 54. नाउ स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. इफ AB bracket equal to A bracket into B bracket over N, then we can say that both attributes A and B are independent. In the short question number 2, we have the following information about attributes. If A bracket equal to 240, second attribute B bracket equal to 270, and the total observations capital N equal to 600, what would be the number of AB bracket if attributes A and B are independent? Here students, both attributes A and B are independent. We can write as AB bracket equal to A bracket into B bracket over N. Students, यहाँ पे आप लोग वैल्यूज को पुट करके फाइंड कर सकते हैं AB ब्रैकेट की वैल्यू को. तो फर्स्ट आपने A ब्रैकेट की वैल्यू पुट की है 240 और देन 270, दैट इज द वैल्यू ऑफ B ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में 600 यूज करेंगे और दोनों जीरोस को आप कैंसिल कर दें और आपके पास 24 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 108. दैट इज द वैल्यू ऑफ AB ब्रैकेट यूजिंग द कंडीशंस ऑफ attributes A and B are independent. That is AB bracket equal to A bracket into B bracket divided by N. In the short question number 3, given the following information, capital N equal to 1000, A bracket equal to 946 and B bracket equal to 490 and AB bracket equal to 452. Show that attributes A and B are negatively associated. If attributes A and B are negatively associated, then we can say that AB bracket is always less than A bracket into B bracket over N. तो ये condition fulfill होगी if attributes are negatively associated. Then students, put the values of AB bracket, which is 452 on left hand side, और right hand side पे put कर दें values 946 A bracket and 490 is the value of B bracket, और denominator में use करेंगे value of capital N which is 1000 और इनको आपने students multiply करेंगे और divide करेंगे 1000 पे और final answer is 463.54 or which is the less than 452. So students, left hand side is less than right hand side, though, so we can say that AB attributes are negatively associated. So in this way students, you can show both attributes are negatively associated. Short question number 4, if there are 144 A's and 344 B's in 1024 observations, how many AB and alpha betas were required so that two attributes A and B are independent? Here students, A bracket equal to 144 and B bracket equal to 384.
capital N equal to 1024 and find the values of AB bracket and alpha beta brackets with conditions two attributes A and B are independent. Before solving this question, first we discuss the 2 by 2 contingency table with relations. First we write the A attribute with positive category in row wise. A और उसकी नेगेटिव कैटेगरी को मैं शो करूंगा अल्फा ग्रीक लेटर्स से और पॉजिटिव कैटेगरी लैटिन लेटर्स ए से. सिमिलरली लैटिन लेटर्स बी सेकेंड एट्रीब्यूट और इसकी नेगेटिव कैटेगरी बीटा. और इनके टोटल्स को स्टूडेंट्स आपने राइट करना है ब्रैकेट 144 गिवन है और अल्फा आपके पास फाइंड करना है अल्फा ब्रैकेट ये और इन दोनों को ए और अल्फा को ऐड करेंगे तो आपके पास जनरेट होगा कैपिटल N 1024. सिमिलरली बी जो है इसको टोटल में राइट करेंगे बी ब्रैकेट आपको गिवन है 384 और बीटा आपने फाइंड करना है बीटा ब्रैकेट ये आपके पास और इन दोनों को ऐड करने से अगेन आपने फाइंड कर लेना है कैपिटल N 1024. और जो आपके पास मिसिंग बॉक्सेस हैं मिडल में इनको आपने कैसे फिल करना है ए और बी. ए बी ब्रैकेट ए बीटा ब्रैकेट अल्फा बी और अल्फा बीटा ब्रैकेट और इनकी वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फर्स्ट वी राइट रिलेशंस. अगर आप लोग इनको रो वाइज और कॉलम वाइज टोटल करेंगे तो यू कैन जनरेट द वैल्यू ऑफ बी ब्रैकेट बीटा ब्रैकेट ए ब्रैकेट एंड अल्फा ब्रैकेट. तो कैसे जनरेट हो सकते हैं अगर आप लोग इन दोनों को ऐड कर लें रो वाइज तो ए बी प्लस अल्फा बी इक्वल टू बी. सिमिलरली ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा और आप अगर ऐड कर लें ए बी प्लस ए बीटा तो जनरेट ए ब्रैकेट और सिमिलरली ए बी अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा यू कैन जनरेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. इन रिलेशंस को यूज करेंगे तो ये रिलेशंस मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं स्टूडेंट्स. n इक्वल टू ए ब्रैकेट प्लस अल्फा और n इक्वल टू बी ब्रैकेट प्लस बीटा ब्रैकेट और b बराबर है आपके पास b ब्रैकेट बराबर है ए बी ब्रैकेट प्लस अल्फा बी और बीटा बराबर है आपके पास ए बीटा प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं उस एट्रीब्यूट को आपने प्रेजेंट रखना है और उसके साथ दूसरे एट्रीब्यूट की पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरीज जो है आपके पास अटैच हैं विद प्लस साइन. सिमिलरली ए ब्रैकेट बराबर है ए बी प्लस ए बीटा और अल्फा ब्रैकेट बराबर है अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा. नाउ स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करेंगे अब ए बी की वैल्यू ए बी ब्रैकेट की और अल्फा बीटा ब्रैकेट की वैल्यूज को फाइंड करेंगे. इसके लिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है 1024 को अगर मैं 144 से माइनस करूं तो मैं जनरेट कर सकता हूं वैल्यू अल्फा ब्रैकेट की और ये मेरे पास वैल्यू है होगी यहाँ पे 1024 माइनस 144 आंसर इज 880. तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे 880 ये अल्फा का आंसर आ जाएगा. सिमिलरली आपके पास 1024 को मैं माइनस कर दूं 384 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 640 और इन दोनों को ऐड करने अगेन तो आपके पास जनरेट हो जाएगा 1024. और हमारे पास एक कंडीशन गिवन है ए एट्रीब्यूट एंड बी एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट. तो आप लोग यहाँ से ए बी ब्रैकेट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो यूज करें कंडीशन ए बी ब्रैकेट इक्वल टू ए ब्रैकेट इंटू बी ब्रैकेट ओवर एन और इनकी वैल्यूज को स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर दें तो ये आपके पास 144 और ए ब्रैकेट गिवन है 384 और कैपिटल N 1024 है. आंसर इज 54. तो ए बी ब्रैकेट का आंसर हमने कंडीशन से फाइंड कर लिया तो ये आपके पास आंसर आ चुका है. ए बी ब्रैकेट का आंसर 54 है. इसको यहाँ राइट कर दें. ये इसकी वैल्यू ए बी ब्रैकेट की आ चुकी है. अब 144 को अगर आप माइनस करेंगे 54 से कॉलम वाइज तो ए बीटा ब्रैकेट का आंसर जनरेट हो जाएगा विच इज 90. यहाँ पे 90 जनरेट हो जाएगा. और सिमिलरली अगर आप 384 को माइनस करें 54 से तो आंसर इज 330 रो वाइज फर्स्ट रो के अंदर ये आपके पास अल्फा बी ब्रैकेट का आंसर जनरेट हो जाएगा. और 640 को माइनस करें
640 माइनस 90, या आप लोग माइनस कर सकते हैं 880, 880 को कॉलम में माइनस कर सकते हैं 330 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 550। दोनों सिचुएशंस में आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं, रो वाइज माइनस कर लें या कॉलम वाइज, दो चीज़ें आपको गिवन है और एक आपने फाइंड करनी है, तो आपके पास सम्स जो है वो रो वाइज और कॉलम वाइज गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने फाइंड कर लिया है ए बी ब्रैकेट का आंसर 54, हाउ मेनी ए बीज, और अल्फा बीटास का आंसर 550 है, और इसके रिमेनिंग आंसर्स भी मैंने यहाँ पे कॉन्टिजेंसी टेबल में फाइंड कर दिए। तो कोई भी आपसे वो जो है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो ये आपके पास अगर आपको रिलेशंस याद हैं, या आप इसको कॉन्टिजेंसी टेबल बना के रिलेशंस को राइट कर लें और वहां से आप लोग वैल्यूज को फाइंड कर लें। In short, question number 5, determine whether the two attributes A and B are independent, positively or negatively associated with information A bracket equal to 490, alpha bracket equal to 570, and AB bracket equal to 294 and alpha B equal to 380. तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने प्रूव करना है कि whether A and B are independent or not. As we know that 2x2 contingency table we have the following relations, तो आपके पास relations जो है वो मौजूद हैं कैपिटल N इक्वल टू ए ब्रैकेट प्लस अल्फा, और यहाँ से आप लोग जो है कैपिटल N की वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ए ब्रैकेट का आंसर हमें गिवन है 490 पुट कर दें प्लस, और अल्फा ब्रैकेट का आंसर 570, कैपिटल N इक्वल टू 1060 है। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने अगर ए बी ब्रैकेट ए एंड बी एट्रीब्यूट्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो राइट साइड पे मैंने इसकी कंडीशंस को राइट कर दिया है, ए बी ब्रैकेट इक्वल टू ए ब्रैकेट इनटू बी ब्रैकेट ओवर एन। तो ए ब्रैकेट कैपिटल एन का आंसर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ए ब्रैकेट और बी ब्रैकेट का आंसर हमें, ए ब्रैकेट का आंसर हमें गिवन है, और हमारे पास मिसिंग आंसर जो है वो बी ब्रैकेट है। तो बी ब्रैकेट का रिलेशंस जो है वो आप लोग राइट कर सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपने इसके रिलेशंस को कैसे राइट करना है। आपने बी को एज इट इज दोनों पे राइट करना है, और दूसरे एट्रीब्यूट की पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी को इसके साथ अटैच कर दें, तो ये आपके पास ए बी ब्रैकेट और अल्फा बी ब्रैकेट जनरेट हो जाएगा। दोनों को प्लस कर लें, तो आपके पास स्टूडेंट्स गिवन है ए बी ब्रैकेट का आंसर क्वेश्चन में 294 है, और अल्फा बी का आंसर 380 है। तो हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ से आप लोग बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं विच इज 674, दोनों को ऐड करने से। और स्टूडेंट्स ए ब्रैकेट का आंसर, बी ब्रैकेट का आंसर, ए बी ब्रैकेट का आंसर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और इसको अपनी इंडिपेंडेंट कंडीशंस में पुट कर दें। तो ए बी ब्रैकेट 294 है गिवन है, ए ब्रैकेट 490 आपको गिवन है, बी ब्रैकेट हमने फाइंड किया है 674, और कैपिटल है हमने फाइंड किया है 1060। मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर जो है वो जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स 311.57, और जो कि लेफ्ट साइड पे 294 से बिल्कुल लेस है। तो सो वी कैन से दैट both attributes A and B are negatively associated. So in this way students, using 2x2 contingency table and its relations, we can find the value of other attributes and check whether the attributes are independent or not. Now in this lecture, important short questions has been discussed for the chapter 18 association of attributes. इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।